आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जनता दल सेकुलर नेशनल कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु और मैसूर के बीच में एक बिरदी शहर आता है, वहां पे चल रहा है, जहां पे जनता दल के जो कद्दावर नेता हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा, एक्स चीफ मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी और जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान और एमएलसी बीएम फारूक, एक्स मिनिस्टर नबी साहब, शफीउल्लाह, कई सारे कद्दावर नेता आज यहाँ पे जमे। आज पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे जेडीएस पार्टी 2023 में आने वाले चुनाव में कैसे 123 सीट अपने बल पर जीतेगी, इसकी ट्रेनिंग दी गई। तमाम कार्यकर्ताओं को इसका कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां पे स्टेट के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। आइए इसके बारे में हम पूरी तफसील देखते हैं और हमने कुमारस्वामी और जेडीएस के जनरल सेक्रेटरी जफरुल्लाह खान से भी बात की। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। हाड़ी हाड़ी स्टार्ट ಮಾಡಿ In spite of JDS being in Karnataka from the last 22 years, in spite of JDS awarding 4% reservation to Karnataka Muslims, the Congress blamed JDS for bringing BJP into the Karnataka. Here in Karnataka, not only in Karnataka, even in national politics, the emergence of BJP is the contribution of the Congress. What Congress done, what is their movement when BJP friends in several illegal activities, even the maintaining of peace in this country, what they have done at that proper time, they have not taken any proper decisions from Congress governments. Because of that reason only, BJP grown in this country and in this state. Their growth is totally the contribution of Congress. In spite, if you see the elections of West Bengal, the entire minority community together voted for Mamata Banerjee. She came. So exactly in Karnataka, That's why. what is the strategy in Karnataka to convey the message? That's why in this workshop of our minority friends, I requested minority friends go before the people to change the knowledge of the Muslim community. Because of Congress attitude, BJP growing. For that reason, I requested all my friends to change the present system. What our minority friends, they have in favor of Congress, they voted in the last election. You please change their mind. What is the real factor? Those things you carry from this workshop, and you please convince the people. Here the Congress is the root cause for the BJP's growth. For that you take proper decision in this future election. That is the message that we have given to them. Siddaramaiah blames Mr. Kumaraswamy and Mr. H.D. Devegowda that JDS is a vote cutter party. It is a B team of the BJP. Because of the BJP will win the next election. That role was played by Siddaramaiah in the last assembly election. They are the vote cutters. Because of their miscommunication to the minority community, to create differences with JDS. Because of that reason only BJP got 105 seats. That is the contribution of Congress attitude. For that reason only we today invited all our friends here. We teach them what is the real fact to carry to the people. That all message we have already given to our friends. Last question, Anna.
Does Mr. Kumaraswamy before the 2023 election will announce to the minorities that in spite of getting any number of seats, we will not align with the BJP so that the Muslims will make a mindset? This time aligning with the BJP or Congress will not arise. This time our intention, our goal is to reach 123. For that we are working very hard. Aligning with some other parties will not arise in 2023 election. Thank you. On our own we will going to form the government. सर कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज लार्ज नंबर में शादी महल में जेपी भवन में जाके जेडीएस में ज्वाइन कर रहे हैं. क्या इसका रीजन आप कांग्रेस में जो माइनॉरिटी लीडर्स में इन फाइटिंग है उसको मानते हैं? हम लोग उनके खेमे में क्यों देखेंगे? एक मिनट, हम लोग हमारा अपना जो प्रेजेंटेशन है, हमारा अपना जो कम्युनिटी से कमिटमेंट है, उस बेस के ऊपर से प्रोग्राम 1 2 3 हमने शुरू किया है. वो लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे सो रहे, हमको क्या मतलब है? हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे. हम लोग हमारी पार्टी को मुसलमान वोट को कैसा खींचा जाए, क्योंकि मुसलमान आज चौतरफा फंसा हुआ है. एक तरफ से सामने से एक बड़ा दुश्मन है, पीछे से एक छोटा दुश्मन है. अब दो दुश्मनों से बीच में से निकालना हो तो एक ही वाहिद जनता दल सेक्युलर पार्टी है जो बाहर निकालती है. समझे ना? नहीं समझे तो मैं सर, आपने कहा आपकी स्पीच में एक खुला दुश्मन है और एक छुपा हुआ दुश्मन है. क्या है सर, ये कौन है दुश्मन आपके? खुला दुश्मन ओपन बोल रहा हूँ, बीजेपी हमारी दुश्मन है. जैसा कर्नाटक में सरकार है, येडियुरप्पा ने कहा टिप्पू जयंती बंद, टिप्पू जयंती बंद, थैंक यू वेरी मच. मुसलमानों की फजूल खर्ची बंद हो गई, लेकिन टिप्पू को दिल से नहीं निकाल सके. लोग निकाल नहीं पाएंगे. ये तो दुश्मनी का सबूत है. बीफ बैंड किसको एहसान कर रहा है? बीफ से मुसलमान नहीं खाता है, बीफ तो क्रिश्चियन खाता है, बीफ तो SC ST खाते हैं. सारी दुनिया, पौनी दुनिया जबकि बीफ खाती है. ये पूरी दुनिया को बांटते हैं और हम लोगों को डांटते हैं. तो इसमें हम पे कौन सा एहसान करिए? वो तो दुश्मनी अदा कर रहे हैं. और रहा दूसरा जो छुपा दुश्मन, ना हमारी कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना मुसलमानों को कोई बिजनेस का लोन दिए, ना कोई इंडस्ट्रियल लोन दिए, ना कोई तालीमी याफ्ता बनाए. हर तरीके से मुसलमानों को कमजोर किए. ये तो छुपा दुश्मन है. ये तो हर कोई मुसलमान बेहतर जानता है कि छुपा दुश्मन कौन है. सर, जेडीएस जनता पर्वा 1 मिशन 123 का जो प्लानिंग के लिए आप यहाँ पे कॉन्क्लेव कर रहे हो, इसमें मुस्लिम का परसेंटेज क्या रहेगा? कुछ डिसाइड हुआ क्या परसेंटेज है? अरे मेरे भाई, 1 से तो 100 तक पहुँचते हैं. अब आप क्या परसेंटेज पूछ रहे हो? शुरुआत जो भी होती है ये से होती है, अलीफ से होती है, नंबर 1 से शुरू होती है. फिर भी हमने एक साथ में 3 नंबर लिए, 1 2 3 लिए हैं. तो 1 2 3 हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी साथ है हमारी पार्टी में. सोशल जस्टिस की बात करें तो कर्नाटक में जो 16% मुस्लिम जो 1 करोड़ 25 लाख की आबादी आती है, उस हिसाब से कम 30 से 35 सीट सोशल जस्टिस के हिसाब से उस कम्युनिटी को मिलना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन के हिसाब सीट्स बी फॉर्म देगी ताकि मुसलमानों को वन टाइम ये डिसाइड किया जाए कि हाँ ये पार्टी है जो हाथ पकड़ सकती है. मुसलमानों में इतनी काबिलियत भी तो होना चाहिए उनके हलकों में. अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग 6-6 टुकड़े होके रहेंगे. एक मुसलमान को टिकट देके उसको हरवाना उसका खून करने के बराबर है. तो उससे बेहतर है कि हम लोग उस टाइम की स्ट्रेटजी उस टाइम बनाएंगे. लेकिन एक बात का वादा करता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम मुसलमान जो काबिलियत रखते हैं, ऐसे काबिल मुसलमानों को इस बार इनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा. इस बात का मैं कमिटमेंट करने का. आखिरी सवाल, क्या इलेक्शन से पहले जेडीएस पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस कर सकती है कि कितने भी नंबर आ जाए बीजेपी के साथ हाथ नहीं जोड़ेगी? ये तो 100% गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ हम लोग हाथ नहीं जोड़ेंगे. जब तक कि श्रीमान देवेगौड़ा जी जिंदा है, ये उम्मीद ही मत रखो कि बीजेपी के साथ जाके हाथ जोड़ने वाले हैं. ये बात का तो मैं दावा करता हूँ. सर, आपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे उलमाए किराम जो है सियासत में आए. तो यही कुछ उलमाए किराम है जो कांग्रेस से मिले हुए हैं और इन्हीं का खुले दिल से सारे उलमाए किराम को अहलन व सहलन, वेलकम टू द पॉलिटिक्स. सियासत के लिए आप लोगों की ज़रूरत है. ये मेरी दावत है आप लोगों को. आओ, आप अपना जिम्मेदारी निभाओ, हिस्सा लो, हम जैसों को रहनुमाई करो, हम लोगों को बताओ कि क्या करना है, कैसे चलना है. ये इस बात का आप लोग मैसेज देना बहुत ज़रूरी है सारे उलमा इकराम को. इस सियासत से जब तक नहीं जुड़ेंगे मुसलमान कौम का भला नहीं हो सकता है.